morning student. In the previous video we discussed about the length and its measurement. So today in this video, in the next part of the chapter second unit and the measurement, we will discuss about the mass, means concept of mass. Mass we have studied or read in previous part ki what is mass. Mass is the quantity of matter contained inside a body is called mass. Its SI unit is kg, we have discussed. Now we will discuss more about the mass. Now we have to discuss the range of the mass. What is the range of the mass? We have also discussed in previous part in that excitement of the physics. Physics deal with smaller to smaller and larger to larger. So in that case we will discuss that the range of the mass. The range of the mass is vary from 10 to the power minus 30 to 10 to the power 35. So this is the mass of electron and this is the mass of the universe. Means the range of the mass is 10 to the power minus 30 to 10 to the power 35. So this is the range of the mass. Now we will discuss more practical unit of the mass. Previously I discussed the kg is the unit of mass. We also discussed what is 1 kg. So 1 kg is the mass of that platinum iridium cylinder whose radius is equal to the height. We have discussed. Now more practical unit are there. So first is atomic mass unit. Why there is a use of need of atomic mass unit? Because the mass of atoms and nuclei particles or atom of nucleus are very small. We cannot compare or we cannot find it in kg. हम उसको kg के अंदर नहीं निकाल सकते. तो उसके लिए हमने फिर एक नई यूनिट बनाई है. उस नई यूनिट का नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है कि वी विल जस्ट कंपेयर द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम विद द C12 मींस कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर कर देते हैं. सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? So atomic mass unit is equal to the 1 of the 12 of the mass of one atom of carbon. कि हम किसी भी एटम के मास का, किसी भी एटम का अगर हमने मास निकालना है तो जस्ट हम उसको कंपेयर करेंगे कार्बन के मास के साथ. वन एटम ऑफ द कार्बन. सो व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is equal to the 1/12 of the mass of a one atom of a carbon. So this is used to find the mass of a atom. अब रीजन बेटा है कि जो एटम वो छोटे हैं उनका मास हम मेजर नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमने क्या निकाला कि हमने नई यूनिट निकाली, उसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. मीन्स हम क्या करते हैं किसी भी एटम के मास को कार्बन के 12th, क्योंकि कार्बन के बेटा 2-3 एलोट्रोप होते हैं. सो एलोट्रोप आल्सो देयर एंड आल्सो देयर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, लेकिन हमने C12 वाले से उसको कंपेयर करना, इसका मास 12 है. उसके बाद एक बड़ी यूनिट के बारे में बात करेंगे, CSL, चंद्रशेखर लिमिट. ये यूनिट का नाम है चंद्रशेखर लिमिट. अब ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है? जो लिमिट है बेटा ये 1.4 टाइम द मास ऑफ अ सन. मींस दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास. कि जो चंद्रशेखर लिमिट है ये सबसे बड़ी लिमिट है मास की, और इसकी एक चंद्रशेखर जो यूनिट है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम. In the previous part we have discussed what is time. Time is the occurrence of event. कि time gap is the occurrence of event or between the two event. मतलब gap between the occurrence of two event. Previously discussed कि rise of sun and set of sun rise and sunset. There is a two event कि sun का rise होना और sun का set होना. तो उनके बीच का जो गैप है उसको हम टाइम कहते हैं. अब टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. तो जो पहली टेक्निक है बेटा उसका नाम है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स? मतलब ऐसी डिवाइसेस और ऐसी मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी जब उनमें से पास कराते हैं तो वो ऑसिलेट करती हैं. अब यहाँ पे जो आपकी वो डिवाइस है उसका नाम है साइनोकरस मोटर. ये एक मोटर है जिसमें से हम जब AC सप्लाई, AC मींस जो हमारे घरों में आती है, जब उसकी सप्लाई करते हैं, बिकॉज द AC सप्लाई इन आवर होम इज 50 हर्ट्ज. तो ये मोटर है, ये रोटेट करती है, और जब ये मोटर रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन से हम क्या बनाते हैं? ऑब्टेन द टाइम स्केल. यूज टू ऑब्टेन द टाइम स्केल. मतलब हम एक स्केल बनाते हैं कि ये मोटर इतने राउंड लगाती है इतने टाइम में, तो हम उसका एक स्केल बना लेते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट डिवाइस? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर. मींस ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती हैं. उसका एक नाम है साइनोकरस मोटर, जो कितने पे काम करती है? 50 हर्ट्ज पे काम करती है, और उसकी रोटेशन से, उसकी ऑसिलेशन से हम क्या डिसाइड कर लेते हैं? एक टाइम इंटरवल को फिक्स कर लेते हैं कि ये उसका एक टाइम इंटरवल है. नेक्स्ट आपका बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मींस बेटा ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक, आपका एक अलग फील्ड है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज अनदर फील्ड ऑफ फिजिक्स. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेमीकंडक्टर है.
तो पहले हमें ये बात करनी है कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर। नाम से सेमीकंडक्टर मींस सेमीकंडक्टर बेटा वो डिवाइस हैं जो दोनों तरह बिहेव करती है, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी। वो हम आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं, कब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है कि जब इन सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बेटा दे प्रोड्यूस EM ऑसिलेशन। अब यहाँ पे EM का मतलब क्या है? EM का मतलब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन मीन अगेन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। उन ऑसिलेशन में मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन बेटा वो ऑसिलेशन जिसके अंदर दोनों फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मींस ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर दोनों फील्ड है। कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगेन हम डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन मींस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो EME ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो उन EME ऑसिलेशन को हम यूज कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन यूज टू मेजर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कि उन ऑसिलेशन का कि जो EME ऑसिलेशन होती हैं उन ऑसिलेशन को यूज किया जाता है टू मेजर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपका जो है डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब जो डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बेटा आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि वो स्टेबल नहीं होते, वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो रेडिएशन छोड़ते रहते हैं टू बिकम स्टेबल। तो उन पार्टिकल को भी हम यूज कर लेते हैं टू सेट अ टाइम इंटरवल और टू सेट अ क्लॉक। कि टाइम को मेजर करने के लिए उनका यूज किया जा सकता है। कैसे? कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जैसे अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं आपके। रेडियो एक्टिव मीन्स ऐसे पार्टिकल जो स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल नहीं है तो वो रेडिएशन छोड़ते रहते हैं और उनके हेल्प से हम बहुत ही स्मॉल टाइम की वो जो पार्टिकल है वो बिल्कुल ही थोड़े टाइम में ही, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू मतलब टूटना शुरू हो जाते हैं। अब वो कौन सा कितना टाइम इंटरवल है? वो टाइम इंटरवल 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -24 सेकंड। मतलब इतने टाइम में वो अनस्टेबल होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट। और एक आखिरी आपका बेटा दैट इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। द वन लास्ट इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। डेटिंग मीन्स ये हमने पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा था रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसको हमने कार्बन डेटिंग का नाम दिया था। कि जो आपके ये जो फॉसिल्स हैं मतलब जो पुराने टाइम की चीज़ें होते हैं जैसे डायनासोर वगैरह हो गए, जो उनकी एज हम चेक करते थे, जो उनके फॉसिल मिलते थे हम रेडियो एक्टिव डेटिंग से उनकी एज को हम चेक करते थे। तो ये हमने कुछ क्लॉक्स डिस्कस किए हैं, कुछ टाइम को मेजर करने के हैं। तो आखिरी जो आपका था वो रेडियो डेटिंग है। डेटिंग मीन्स कि जो एज ऑफ फॉसिल वगैरह हमने चेक करनी है क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम के हैं, उसको हम कार्बन डेटिंग से चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन इट केयरफुली। इसको ध्यान से सुनना आप लोगों ने कि डायमेंशन क्या है। हमने पीछे पढ़ा था कि दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक होती हैं फंडामेंटल, एक होती हैं मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड। तो बेटा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का मीनिंग क्या है? तो पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मास measured in kg and its dimension represented by capital M. Clear? Similarly, length is measured in meter, its dimension is represented by capital M. Similarly, time is measured in second, its dimension is represented by capital T. So these are the dimension of a fundamental quantities. MLT means अब हमने क्या करना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को MLT की फॉर्म में लिखना है, मतलब मास, लेंथ और टाइम। अब व्हाट इज डिमेंशन? डिमेंशन का मीनिंग है बेटा कि किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी रेज टू पावर आ रही है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज डिमेंशन? डिमेंशन मीन्स कि किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना है और ये देखना है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी जो आ रही है वो कितनी रेज टू पावर आ रही है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज योर डिमेंशन। डिमेंशन मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेज टू पावर ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जो फंडामेंटल से बनी है। तो व्हाट इज डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स representation of a derived fundamental quantity in the form of fundamental quantity
इन द फॉर्म ऑफ रेज टू पावर, कि जब हम किसी भी ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की रेज टू की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डिमेंशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले जैसे मैंने एरिया लिखा बेटा, एरिया, सो यू ऑल नो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्लियर, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड ब्रेड्थ इज आल्सो मीटर, सो इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो अब हमने इस एरिया को किसकी फॉर्म में लिखना है, अब एरिया जो बना है वो लेंथ और ब्रेड्थ से मिलकर बना है, मतलब जो एरिया हो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जो एरिया आपकी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और किससे मिलकर बनी है, वो फंडामेंटल, कौन सी फंडामेंटल से, लेंथ और ब्रेड्थ से मिलकर बनी है। अब दोनों यूनिट क्या, मीटर है। अब हमने इसको एम एल और टी की फॉर्म में लिखना है, एम एल और टी की फॉर्म में लिखने को ही हम डिमेंशन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें बेटा, मैंने कहा था लेंथ रिप्रेजेंटिंग यूनिट इज मीटर, unit is meter and its dimension is represented in mlt, so length is l, so if I will write here, so for meter I will write here l, कि मीटर के लिए l लिखा, फिर से मीटर के लिए l लिखा, तो यहाँ पे क्या है, l की पावर 2 आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ये किसकी फॉर्म में है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की रेज टू की पावर की फॉर्म में है। मतलब जब किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की रेज टू की पावर में लिखेंगे तो उसको हम उसकी डिमेंशन कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे था आपका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरिया, इफ वी टेक द वॉल्यूम, सो जो वॉल्यूम होते हो गया आपकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो अगर हम तीनों को लिखें तो इट इज मीटर, सो इट इज आल्सो इन मीटर, इट इज आल्सो इन मीटर। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से मीटर के लिए क्या लिखना अपने एल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका L इंटू एल, सो इट विल बिकम L रेज़ टू पावर 3। तो आपने क्या देखा कि हमने जो वॉल्यूम थी वो क्या थी, वो ड्राइव्ड क्वांटिटी थी, और हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखा, हमने उसको फंडामेंटल की रेज़ टू की पावर एंड फॉर्म में लिखा, तो इसकी बन गई है डिमेंशन, क्लियर। अब आगे आता है डिमेंशन इक्वेशन। डिमेंशन इक्वेशन में मैंने क्या बेटा, ये तो इसकी डिमेंशन थी, लेकिन अगर आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना तो इक्वेशन की फॉर्म में आपके ये तीनों होने चाहिए। अब मैं इसको जब लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा क्या कहा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, इसका मतलब यहाँ पे मास और टाइम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 2, t रेज़ टू पावर 0, तो आप ये क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो m है, m की पावर 0 मींस 1, l की पावर 2, t की पावर 0 मींस ये आपकी बन गई डिमेंशन इक्वेशन। मींस ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर तीनों आए आपके, तीनों मींस कौन आए, लेंथ भी आए, मास भी आए और क्या है, टाइम भी आए। हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे केल्विन भी आएगा बेटा, क्लियर। सो अगर मैं ये तो इसकी क्या डिमेंशन है, अगर इसको मैंने डिमेंशन इक्वेशन बनाना है तो आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली द लेंथ, सिर्फ लेंथ के बारे में बात है। इसका मतलब यहाँ पे ना तो मास है ना ही यहाँ पे क्या है टाइम है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। सो ये आपकी कुछ डिमेंशन फॉर्मूलाज थे। अब इनको बेटा हम और डिटेल में करते हैं, क्लियर। अब आपसे मैं वेलोसिटी का बनाता है, चलो वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम इसका डिमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं या डिमेंशन इक्वेशन बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर इन मीटर, टाइम मेजर इन सेकंड, क्लियर। सो नाउ हमने क्या था, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, तो यहां पे आ गया कैपिटल एल, डिवाइड बाय सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बनेगा आपका एम एल टी की पावर -1, क्यों, क्योंकि टी नीचे है, जब ऊपर जाएगा पावर क्या आएगी माइनस, तो ये इसका होगी डिमेंशन। लेकिन अगर आपने इसको डिमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, डिमेंशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे मास नहीं है। अगर यहाँ पे मास, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l t -1। सिमिलरली अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p, मोमेंटम किसके इक्वल होती है, मोमेंटम होती है आपकी मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। अब मास की यूनिट क्या होती है, जल्दी बोलो, मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी यूनिट होती है बेटा, अभी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे तो ये बन गया केजी मीटर अपॉन में सेकंड। अब इसका डिमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या आपका केजी, तो केजी की जगह क्या आएगा कैपिटल एम, और ये क्या है मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा कैपिटल एल, डिवाइड बाय ये आपका क्या है यहाँ पे सेकंड, सेकंड के लिए क्या आएगा कैपिटल टी। तो इसका डिमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, इसका बन गया एम एल टी -1, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपका एक डिमेंशन फॉर्मूला बताता हूं एक्सेलरेशन का,
सबने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, दिस इज एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मींस बेटा अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसकी डिमेंशन में आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मींस ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी होते हैं बेटा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पे भी क्या है, सेकंड को पढ़ेंगे मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अब फिर से वही बात, मीटर, मीटर की जगह लिखेंगे कैपिटल एल, मीटर की जगह लिखेंगे कैपिटल एल। नीचे क्या सेकंड, सेकंड की जगह लिखेंगे कैपिटल टी, लेकिन सेकंड की पावर क्या है 2, तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ बन गया एल टी माइनस 2, क्या बन गया एल टी माइनस 2 बन गया यहाँ पे। अब फिर वही बात बेटा, यहाँ पे देखो मास नहीं है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम जीओ एल टी माइनस 2। मैनी डायमेंशन फॉर्मूला यू कैन ड्राइव, द वन मोर इज डेंसिटी। Density, all physical quantity will find the dimension of density. So the density of a substance is given by mass upon volume. Clear? So again the unit of mass is kg. Unit of mass is kg. But the unit of volume, volume means meter cube. The unit of volume is meter cube. So here comes out to be meter cube. Now we'll write its dimension formula. So in place of kg, what we can write? Capital M divide by मीटर, मीटर मींस लेंथ, तो लेंथ की जगह लिखेंगे कैपिटल एल की पावर कितनी है 3, तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ बन गया एम एल, ये 3 का है, एम एल का नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा -3, और यहाँ पे टाइम नहीं है तो टाइम में टी की पावर क्या हो गया 0। क्लियर? मैनी अदर फिजिकल क्वांटिटी वी कैन ड्राइव। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपकी आएंगी, उनके बारे में हमने पढ़ना है कि हाउ विल ड्राइव द डिमेंशन फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है कहता है फोर्स, तो फोर्स का डिमेंशन ड्राइव करें फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, मास यूनिट होती है केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो क्या बन गया आपका पूरा, ये बन गया आपका केजी मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब लिखते हैं भाई केजी की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, बिकॉज kg is a mass, so mass का जो डिमेंशन होगा वो होगा कैपिटल M, इनटू में यहाँ पे क्या मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा कैपिटल L डिवाइड बाय सेकंड के लिए क्या आएगा कैपिटल T, तो लेकिन यहाँ पे सेकंड का क्या है स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका डिमेंशन बन गया एम एल टी माइनस 2। सो दिस इज द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट निकालते हैं वर्क का। वर्क का क्या होगा डिमेंशन फॉर्मूला? तो अब पूरे वर्क को लिखेंगे हम। वर्क होता है W is the work done which is equal to force into में displacement। So यहाँ पे जो S है बेटा वो displacement है, क्लास 9 में पढ़ा था आपने displacement। क्लियर? displacement represent by S। तो जो वर्क डन होता है force into displacement, लेकिन जो force है वो क्या होता है बेटा mass into में acceleration into में displacement। क्लियर? अब mass की यूनिट क्या होती है kg, acceleration क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस एस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, लेंथ को किसमें लिखेंगे हम इनटू में मीटर, तो यहां बन गया आपका केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो भी कैसे बना आपको देखना है ध्यान से, कैसे बना है सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर का ना नीचे था। अब इसके लिए हमने क्या करना है, फिर से इसका डायमेंशन इन प्लेस ऑफ केजी क्या लिखूंगा बोलो, कैपिटल एम, मास, सॉरी दिस इज मीटर, मीटर मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए लिखेंगे कैपिटल एल, लेकिन पावर कितनी है 2। नीचे आपका क्या सेकंड, सेकंड के लिए लिखेंगे कैपिटल टी, लेकिन पावर कितनी है 2, तो इसका बन गया mL2t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम निकालते हैं एनर्जी का। कौन सी एनर्जी? चलो निकालते हैं जो भी एनर्जी आपकी है। सबसे पहले मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लिखे सभी के लिए, व्हाट इज m? m इज द मास, द यूनिट इज kg। व्हाट इज g? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही है किसकी वजह से, जो है ग्रेविटी की वजह से। तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू दिस इज हाइट, हाइट मींस हाइट, हाइट इज मेजर इन मीटर। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर।
तो इसका क्या हुआ डिमेंशन फॉर्मूला, अगेन इट्स बिकम ml2 डिवाइड बाय t2, इट्स बिकम ml2 t माइनस 2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इसका वर्क का और किसका एनर्जी का क्या होंगे, सेम होंगे। कोई भी एनर्जी आपकी अगर मैं निकालता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल है नहीं, आपने तो सिर्फ डिमेंशन वाले देखने हैं। तो दिस इज m इज मास, तो मास दिस इज मास, तो मास की यूनिट क्या होगी kg। व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, ऊपर का इसका स्क्वायर, तो लिखे इसको, तो ये बन जाएगा kg। जब इस स्क्वायर को ओपन किया जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा सेकंड का स्क्वायर। क्लियर। अब लिखते हैं इसका फिर से, kg के लिए कैपिटल M, kg के लिए क्या आएगा कैपिटल M, यहां मीटर के लिए क्या आएगा कैपिटल L, लेकिन ऊपर क्या 2, नीचे फिर से सेकंड t2, तो क्या बन गया ml2t माइनस 2। तो हमने क्या देखा, ये पोटेंशियल एनर्जी का था, ये किसका था काइनेटिक एनर्जी का था, और वर्क का भी हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था ml2t माइनस 2। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सेम है। तो आप क्या बोलोगे, वर्क एनर्जी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके बाद हम और आगे डिस्कस करते हैं एनर्जी के बाद। नेक्स्ट आपका यहां पे क्या है टॉर्क। उससे पहले टॉर्क से पहले हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर को आप पहले से जानते हो। प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर। सो वी हैव डिस्कस प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको सीधा डायमेंशन फॉर्मूला तो सीधा लिखो, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर से वही कि जो फोर्स उसको लिखते हैं मास इनटू में एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। फिर से लिखेंगे किसकी यूनिट्स, मास की, एक्सेलरेशन की और किसकी एरिया की। तो व्हाट यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास इज kg, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा kg मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर स्क्वायर। तो इस एक मीटर के साथ ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, बचेगा kg डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर। तो लिखते हैं सबके लिए, kg के लिए क्या लिखेंगे कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या आ गया कैपिटल M डॉट डाउन साइड ये सेकंड, सेकंड के लिए क्या आएगा कैपिटल T का स्क्वायर, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या आएगा कैपिटल L। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, इसका बन गया ml-1 t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब हमने थोड़ी देर पहले टॉर्क वर्ड कहा था, टॉर्क आपका आया था पहले चैप्टर में, जब हमने आखिरी में पढ़ा था व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स सर्कुलर पाथ। तो व्हाट इज टॉर्क, what is torque, the torque is the force acting on an object when object move in circular path। कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम टॉर्क कहेंगे। अब टॉर्क होता क्या है, हमने टॉर्क के बारे में, जो टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, क्लियर है, और ये आपका क्या है फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाट इज टॉर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फिर से चलते हैं हम इसके ऊपर। तो व्हाट इज द वैल्यू फोर्स, द फोर्स इज मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। सो नाउ यूनिट ऑफ मास इज kg, the acceleration is meter per second square, this is distance, distance means मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे मीटर। तो क्या बन गया यहाँ पे आपका यहाँ बन गया kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो क्या है आपके यहाँ पे आ जाएगा kg क्या आ गया कैपिटल M, मीटर क्या है कैपिटल L का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का की 2 t की 2। तो ये बन गया आपका ml2t-2। आपने एक चीज नोट की यहाँ पे, क्या नोट करना है कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसकी तरह सिमिलर है,
अभी पीछे निकाला था वर्क का, एनर्जी का और किसका, टॉर्क का, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब एक और क्वेश्चन की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई 3 फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो आप क्या आंसर दोगे, टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी। सो इन योर बुक मैनी मोर डायमेंशन फॉर्मूला आर देयर, क्लियर। So before drawing this dimension formula, first you have to, or which student having Dinesh book, so you have to do up to 30. So many more we will discuss again. So now we will discuss the angle जो हमने अभी डिस्कस किया था थीटा। तो हमने जो थीटा देखा था वो थीटा किसके इक्वल था, देखते हैं चलो। जो थीटा था आपका, थीटा इज इक्वल टू लिखते थे आप L बाई आर, मीन्स दिस इज एंगल, एंगल मेजर इन रेडियन, सो L बाई आर। चलो इस थीटा का अब हम डिमेंशनल फॉर्मूला मेजर करते हैं। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एंड R इज रेडियस, R आपकी क्या है, रेडियस है। चलो लेंथ मेजर इन मीटर, रेडियस इज आल्सो मेजर इन मीटर, सो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल। तो आपने क्या देखा, यहाँ तो ना तो लेंथ आया, ना यहाँ पे टाइम आया, ना यहाँ पे मास आया, इसका मतलब यहाँ कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई। तो इसका मतलब जो आपका एंगल है वो आपकी एक डिमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम एक और करते हैं पावर, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, पावर, पावर था वर्क अपॉन टाइम, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन पावर। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो W इज वर्क डन, तो वर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो फोर्स फिर से किसके इक्वल है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, दिस इज s, s मींस नॉट अ सेकंड, यहां पे s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब यहां पे क्या है, दिस s इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से मैं लिखा यहां पे s का s लिख रहे हैं, तो s यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब हम इन सबका डायमेंशन से पहले इनकी यूनिट लिखेंगे। तो इसकी यूनिट क्या है, मास की kg, एक्सेल यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यूनिट कहते हैं मीटर डिवाइड बाय सेकंड, टाइम यूनिट कहती है सेकंड, क्लियर। तो अगर हम यहां से क्या करते हैं, इस सेकंड को नीचे लेके जाते हैं, तो नीचे बन जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो पूरी यूनिट क्या बनेगी, kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। kg की जगह आएगा कैपिटल M, मीटर की जगह आएगा L की 2 और सेकंड क्या T की 2। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, this is 2 and 3, this become 3 not 2 because this is second square and this second it will become second cube। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका t क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर इज mL2t-3। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज सरफेस टेंशन, द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई एम राइटिंग सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायग्राम ड्राइव करते हैं, इन द प्लेस ऑफ फोर्स क्या लिख सकते हैं हम, ma मास इनटू में एक्सेलरेशन डिवाइड बाय L, L मींस लेंथ, L की L आएगी, तो मास के लिए लिखेंगे kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ के लिए लिखेंगे मीटर। तो आपका ये लेंथ मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका बन गया kg डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो kg के लिए क्या आ गया, कैपिटल M डिवाइड बाय सेकंड के लिए क्या आ गया, कैपिटल T का स्क्वायर। तो इट्स डायमेंशन फॉर्मूला बिकेम mL0t-2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। एक आपको आता है यहाँ पे, ये हम सारी बेटा जो डायमेंशंस है ये हम आगे जब जाएंगे, एक स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस होता है दैट इज सिमिलर टू प्रेशर। अब स्ट्रेस जो होता है आपका, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो स्ट्रेस होता है कहता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अब मैं इसको सिंपल सीधा मैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLt-2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब L की 2। तो ये L के साथ एक L क्या हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बन गया mL-1t-2। क्लियर। सो देयर आर इन योर दिनेश बुक many dimension formula are there, but first you have to do up to 30, clear। And those students not having that Dinesh book,
So I will send the pic of these dimension formula. You just revise these dimension formula. So this is for over for today. In the next video we will use the dimension formula to convert one unit into another, or correctness of expression, or to drive the expression.